1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मार्क 7 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स तक, लेविटिकस 26 चैप्टर 27 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक, लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 27 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 7 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स तक, किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा, जहाँ तेरा वचन है वहाँ आज़ादी है। हमारा मन, सोच, विचार, कल्पनाओं को खुदा परमेश्वर हम तेरे लहू से यीशु मसीह धो देते हैं और हम मानते हैं खुदा परमेश्वर तेरे वचन के आगे कोई रास्ता नहीं खुदा। जहाँ तेरा वचन है खुदा वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। उसको पार करके हम आगे कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे वचन के सामने रखते हैं और हम पिता परमेश्वर तेरे अधीन आते हैं। हमें पिता परमेश्वर ये जो वचन अब पढ़ रहे हैं, इस वचन की गहरी दोस्ती में उतारिए खुदा, ताकि ये वचन हमारे जीवन को परमेश्वर प्रभावशाली बना सके, तेरे राज्य के कामों में हमको आगे बढ़ा सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे मार्क 7 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स तक। Christ reproached the scribes and Pharisees for their hypocrisy. Meat defileth not a man. Christ healeth the Syrophoenician woman's daughter, and one that was deaf. First verse, then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem, and when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands after eat not, holding the tradition of the elders. And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, Honor thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Korban, that is to say, a gift by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. And ye suffer him no more to do aught for his father or his mother, making the word of God of none effect through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me, every one of you, and understand.
There is nothing from without a man that entering into him can defile him, but the things which come out of him, those are they that defile the man. If any man have ears to hear, let him hear. And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. And he said unto them, are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him, because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. And from all this defile the man. Okay. हम पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक। परंपरा पालन का प्रश्न। तब फरीसी, पहले वचन से, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए इन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता कि कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपने परंपराओं से जिन्हें तुम ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं
परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इन वचनों के अधीन हम आते हैं खुदा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।